डोरेमोन हूँ। आज टीचर वालिदात की कहानी बताने वाली है। मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तुमने अभी तक नहीं किया, कर लो। In a mud hut far from town lived an old grass cutter named Walidad. Every morning, Walidad cut and bundled tall wild grass. Every afternoon, he sold it as fodder in the marketplace. Each day he earned 30 paisa. 10 of the small coins went for food, 10 went for clothes and other needs, and 10 he saved in a clay pot under his bed. In this manner, Walidad lived happily for many years. One evening, Walidad dragged out the pot to see how much money it held. He was amazed to find that his coins had filled it to the brim. What am I to do with all this money? I need nothing more than I have. Walidad thought and thought. At last, he had an idea. The next day, Walidad loaded the money into a sack and carried it to a jeweler in the marketplace. He exchanged all his coins for a lovely gold bracelet. Then Walidad visited the home of a traveling merchant. Tell me, in all the world, who is the noblest lady? Without doubt, it is the young queen of Khaistan. I often visit her palace, just 3 days' journey to the east. Do me a kindness. The next time you pass that way, give her this little bracelet with my compliments. The merchant was astonished, but he agreed to do what the ragged grass cutter asked. Soon after, the merchant found himself at the palace of the Queen of Khaistan. He presented the bracelet to her as a gift from Walidad. How lovely! Your friend must accept a gift in return. My servants will load a camel with the finest silks. When the merchant arrived back home, he brought the silks to the hut of Walidad. Oh no! This is worse than before. What am I to do with such finery? Perhaps you could give it to someone else. Walidad thought for a moment. Tell me, in all the world, who is the noblest man? That is simple. It is the young king of Nekabad. His palace, too, I often visit. Just 3 days' journey to the west. Then do me another kindness. On your next trip here, give him these silks with my compliments. The merchant was amused, but he agreed. On his next journey, he presented the silks to the king of Nekabad. A splendid gift in return. Your friend must have 12 of my finest horses. So the merchant brought the king's horses to Walidad. This grows worse and worse. What could I do with 12 horses? I know who should have such a gift. I beg you, keep 2 horses for yourself and take the rest to the Queen of Khaistan. The merchant thought this was very funny, but he consented. On his next visit to the queen's palace, he gave her the horses. Now the queen was perplexed. She whispered to her prime minister, Why does this Walidad persist in sending gifts? I have never even heard of him. Why don't you discourage him? Send him a gift so rich, he can never hope to match it. So, in return for the 10 horses from Walidad, the queen sent back 20 mules loaded with silver. कैसे लगी वालिदात की कहानी? क्या इंग्लिश में थी, समझ में नहीं आई? हिंदी में बताओ? ठीक है, तो सुनो। आओ प्यारे दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी वालिदात के उपहार की। वालिदा नाम का एक आदमी था जो एक मड से बनाई हुई झोपड़ी में रहा करता था। वो बहुत मेहनती था। वो सुबह रोज उठ के घास काटने जाता था, फिर दोपहर में उसके बंडल बना के मार्केट में बेचता था। जितने पैसे मिलते थे उससे गुजारा करता था। तो जब वो मार्केट में बेचता था तो उसको हमेशा
30 पैसा इतना मिलता था। उसमें से 10 पैसा वो फूड के लिए, 10 पैसा क्लॉथ और बाकी की चीज़ों के लिए, कपड़े के लिए और किसी के लिए, और 10 जो पैसे उड़ते थे वो अपने बेड के नीचे एक मटके में रखता था। ऐसे बहुत सालों से चालू था। वो बहुत हैप्पी था, उसको कोई गम नहीं था। एक इवनिंग के टाइम में जब उसने सोचा कि कितने पैसे जमा हो गए, तो मटका पूरा भर गया था। अरे बाप रे, मेरी नीड्स इतनी नहीं है और ये पैसा तो बहुत है, अब मैं इसका क्या करूँगा, वो सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ तो आ गया और अब वो जो दिमाग में आया है वही करने की उसने ठान ली। तो उसने क्या किया, एक सैक में भर के वो सारा रख दिया। फिर वो सैक उसने उठाई और दूसरे ही दिन वो अपने पीठ पे वो गद्दा रख के ज्वेलर के पास, जो गहने बेच देता है, बनाता है मार्केट में, उसके पास ज्वेलरी शॉप में गया और उसने सारे पैसे जो थे उसको दे दिए। उसके बदले में एक बहुत सुंदर सा छोटा सा ब्रासलेट ले लिया। फिर वो एक मर्चेंट जो हमेशा घूमता रहता है वहाँ उसको बोला कि यहाँ पे जो नोबलेस्ट लेडी है वो पूरे जग की, वो कौन है? तो उसने बोला ऑफ कोर्स जो बहुत खालिस्तान की जो जवान रानी है, उससे ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं सकती नोबलेस्ट। मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ। तो वाली ने बोला एक काम करोगे भैया, मेरे पास एक छोटा सा ब्रासलेट है, मेरी तरफ से वो बहुत नोबल है, इसलिए उनको दे सकोगे? तो मर्चेंट को बहुत पहले तो सरप्राइज़ लगा कि ये क्या, इतना छोटा सा आदमी और रानी के लिए उपहार दे रहा है। उसने ले लिया और बोला ठीक है, तुम जाओ, मैं जाऊँगा। तो मर्चेंट जब रानी के महल में, खालिस्तान के रानी के महल में गया तो उसने रानी को वो गिफ्ट वालिदाद ने उसको दिया है, ऐसे बोल के दिया। और उसका जो वालिदाद नाम का फ्रेंड है वो चाहता है, इसलिए आप ले लीजिए। रानी ने देखा, रानी को बहुत पसंद आया और उसने ले लिया। लेकिन किसी भी गिफ्ट के बदले में हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो रानी ने भी उसको सिल्क के बहुत सारे कपड़े ऊँट पे डाल के दे दिए और उसको मर्चेंट को बोला कि ये वालिदाद को दे दो। वालिदाद ने जब उस सिल्क को देखा तो बोला अरे ये क्या हो गया, मुझे नहीं चाहिए भैया, अब मैं क्या करूँ इस कपड़ों का। बहुत सुंदर कपड़े भेजे हैं रानी ने, लेकिन एक काम करो। वो मर्चेंट को पूछने लगा कि अब मैं इसका क्या करूं? तो मर्चेंट बोला मुझे कुछ पता नहीं है, तुमको रानी ने भेजा, तुम ही करो। तो उसने बोला अच्छा अब तुम मुझे नोबलेस्ट मैन बताओ पूरे जग में, ऐसा कौन सा नोबलेस्ट मैन है? तो व्यापारी बोला अरे यंग किंग जो है नेकाबाद का, वो सबसे, मैं उसके महल में हमेशा जाता रहता हूँ, मैं जब भी जाऊँगा तो मैं तुमको बताऊँगा। तो वालिदाद बोला बताओ मत, ये जो सिल्क है ये तुम ही रखो, और जब भी तुम नेकाबाद के किंग को मिलने के लिए जाओगे तो मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट उन्हें ज़रूर दे देना। इस बार तो व्यापारी बहुत सरप्राइज होके वालिदाद को देख रहा था। वो नेकाबाद गया और उसने वो सिल्क के कपड़े नेकाबाद के राजा को दे दिए। नेकाबाद के राजा को जब वो कपड़े मिले तो वो बहुत खुश हो गया। अरे भाई गिफ्ट मिला है तो उसका रिटर्न गिफ्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा। उसने उसके 12 घोड़े निकाले और मर्चेंट को बोला कि ये वालिदाद को हमारी तरफ से दे दो। मर्चेंट वालिदाद के पास आया और वो 12 घोड़े उसको दिए। अब वालिदाद बोला हे भगवान, ये तो और भी गंदा हो गया, मुझे किसी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था, अब ये 12 घोड़ों का मैं क्या करूँगा। ऐसे सोचते समय उसने मर्चेंट की तरफ देखा और बोला एक काम करो, ये इसमें से 2 घोड़े तुम रख लो और बाकी के 10 घोड़े जो है वो खालिस्तान के रानी को दे दो, मेरे तरफ से गिफ्ट। मर्चेंट की दिमाग अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो अजीब सी चीज़ देख रहा था। खालिस्तान के रानी को जब वो 10 घोड़े उसने गिफ्ट में दे दिए तो उसे भी पहले बहुत फैसिनेट हो गई, वो अजीब सा लगा। फिर उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को पूछा
कि ये वालिदात को मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, और ये मुझे हमेशा गिफ्ट भेज रहा है, बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट भेज रहा है, मैंने इसके बारे में तो कभी सुना नहीं है, रानी को गिफ्ट भेज रहा है, ऐसे कौन कर सकता है, ये बहुत कोई तो रिच आदमी होगा। अब एक काम करते हैं, इसको भी रिटर्न गिफ्ट भेजते हैं, और रिटर्न गिफ्ट में उन्होंने 10 गधे उनके ऊपर सिल्वर के पोते भर के दे दिया, ऐसे रिटर्न गिफ्ट दे दिया। हेलो दोस्तों, मैं डोरेमोन, नोबिता, सुजुका, जियोन मेरे पीछे है। हमें तो वालिदात की कहानी बहुत पसंद आ गई है। मैंने बोला था ना, तुम सब्सक्राइब कर लो भाई, इस चैनल को बहुत बढ़िया है। थैंक यू।